Good afternoon to all. This is me, Professor Punesh Kumar Temre, and I welcome you all in today's lecture of Theory of Computation. And in today's class, we have to go for the Mealy machine. This is once again another automata which generates output. तो बेटा आवाज आ रही है क्या मेरी आप लोगों को? या तो good afternoon all. This is me, Professor Punesh Kumar Temre, and in today's class of Theory of Computation, we have to go for the topic of Mealy machine. So Mealy machine is a finite automata with output. So in earlier classes we have discussed regarding the characteristics of finite automata with output. So particularly these are the automata which generates output, and whenever any input will be there, on the basis of that particular input, these automata will not only puts the automata from one state to another state, but during transition it will generate the output symbol. We have also discussed that these automata are not particularly used for acceptance or rejectance of particular string, but also it can be used to generate the output on the basis of given set of input. And particularly two kinds of finite automata were there which were generating the output. First one was Murray machine and second one was Mealy machine. So in earlier class we have already discussed regarding the Murray machine, and in today's class we have to go for Mealy machine. So what exactly Mealy machine is? So Mealy machine is a finite automata where the output is associated with present state and present input symbol. तो इससे पहले हमने मिले मशीन देखा हुआ था. इससे पहले हमने मुरे मशीन देखा हुआ था. तो जस्ट आई हैव टू इरेज इट. So in earlier class we have already discussed regarding the Murray machine, and now in today's class we have to go for the Mealy machine. तो जब हम मुरे मशीन की बात करेंगे तो मुरे मशीन में क्या हो रहा था? मुरे मशीन का आउटपुट जो था वो ओनली प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता था. प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता था इसका मतलब किसी पर्टिकुलर सिंबल की वजह से अगर हम किसी स्टेट में अगर ट्रांजिट हो रहे, सपोज आई एम अराइविंग एट स्टेट Q0, देन इट मे बी ड्यू टू आइडल सिंबल 0 और इट मे बी ड्यू टू आइदर सिंबल 1, लेकिन हम आ कहाँ पे रहे? स्टेट Q0 पे आ रहे. एंड वेन एवर वी विल अराइविंग एट स्टेट Q0, तो Q0 की वजह से हमेशा आउटपुट ये जनरेट होगा. So this was the case in case of Murray machines. Means my output was dependent on only present state. But this is not the case in case of Mealy machine. अगर हम Mealy machine की बात करेंगे तो Mealy machine में क्या हो रहा है? अगर आप Q0 स्टेट पे अगर आ रहे हैं तो Q0 स्टेट पे आप 0 की वजह से आ रहे हैं या Q0 स्टेट पे आप 1 की वजह से आ रहे हैं. तो अगर Q0 स्टेट पे आप 0 की वजह से आ रहे हैं तो आउटपुट ये जनरेट हो सकता है, वेयर एज Q0 स्टेट पे 1 की वजह से अगर आ रहे हैं तो आउटपुट B की वजह से हो सकता है. तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो रहेगा, मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा का आउटपुट जो रहेगा, दैट ऑटोमेटा विल फाइनल ऑटोमेटा आउटपुट विल नॉट डिपेंड ऑन ओनली प्रेजेंट स्टेट, बट इट विल डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट सिंबल ऑल्सो. एंड देयरफॉर हमने यहाँ पे लिखा है इन दिस फाइनाइट ऑटोमेटा आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ present state, this is present state, and present input symbol. So here my output will depends upon two things in case of Mealy machine: what is my present state and which one is my present input symbol. So in this way these are the two different parameters on the basis of which the output of Mealy machine will get generated. So all of you are getting this particular point, kindly acknowledge me. Yeah. So here we can say that in case of Mealy machine, output will depends upon two things. पहला जो चीज था वो था कि प्रेजेंट स्टेट क्या, और दूसरा जो चीज था वो है आपका प्रेजेंट इनपुट सिंबल क्या है. Then if length of the input string is n, then length of the output string will be also n. Now Mealy machine is represented by 6 tuples, and these 6 tuples will be as q, sigma, delta, del, lambda and q0. तो यहाँ q की अगर हम बात करेंगे तो q इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स.
सिग्मा की बात करेंगे तो सिग्मा अल्फाबेट है, इसका मतलब फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। डेल्टा की अगर हम बात करेंगे तो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आउटपुट सिंबल्स, जो भी आउटपुट हमारे जनरेट हो रहे हैं। देन वी हैव डेल, डेल इज ए ट्रांजिशन फंक्शन, एंड देन वी हैव लैम्बडा। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे लैम्बडा जो है ये स्टेट ऑफ आउटपुट फंक्शन है और क्यू जीरो आपका इनिशियल स्टेट है। तो अगर आप मिले मशीन और मूरे मशीन को अगर कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद आपको डिफरेंस जो दिखाई देगा, दैट डिफरेंस इज देयर इन लैम्बडा। लैम्बडा में क्या था, एज फार एज मिले मशीन इज कंसर्न, लैम्बडा वाज डिपेंडेंट ओनली ऑन स्टेट, बट यहाँ पे लैम्बडा जो है ये स्टेट यानी क्यू के अलावा इनपुट अल्फाबेट पे भी डिपेंड कर रहा है। इसलिए अगर हम मूरे मशीन की बात करें और मूरे मशीन में अगर लैम्बडा को डिफाइन करेंगे तो लैम्बडा वाज क्यू ओवर डेल्टा। बट अगर हम मिले मशीन की बात करेंगे तो एज फार एज मिले machine is concerned, this lambda will not only depend upon current state, but also it depends upon current input symbol, and therefore here two parameters are there which will decide what will be the output symbol. So this is the only difference in case of Mealy machine and a Murray machine. So difference is there in case of lambda, that is a state of output function. Now here we have to discuss a designing of a Mealy machine with respect to one problem, and here problem is design Mealy machine for finding ones complement of a binary number. तो हमें वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना है, एंड आई थिंक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर क्या होगा ये आपको पता है। तो पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त हमारा इनपुट क्या होगा, तो हियर माय इनपुट विल बी अ बाइनरी नंबर, यानी इट विल बी अ बाइनरी स्ट्रिंग ओवर 0 and 1। तो दिस विल बी माय इनपुट। तो अगर मेरा इनपुट अगर है 10001 मीन्स 10001 इस तरह का इनपुट अगर है, एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर सिंबल को लेफ्ट टू राइट रीड करते जाना, और लेफ्ट टू राइट रीड करते वक्त अगर हमें 1 मिल रहा है तो 1 को हमें लिखना है 0, और अगर हमें 0 मिल रहा है तो 0 को लिखना है 1। मीन्स जब जब 1 आएगा तब तब हमें 0 लिखना है, और जब जब 0 आएगा तब तब हमें 1 लिखना है। इस तरह से हम वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर को जनरली लिखेंगे। और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर जब कभी भी हम लिख रहे हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर बनाने के लिए हमें यहाँ पे स्टेट जो लगेंगे वो दो स्टेट रहेंगे। एक स्टेट हमारा Q0 हो सकता है और स्टेट Q1। स्टेट Q0 का मतलब होगा जब मेरे पास आने वाला सिंबल जो है वो रहेगा 0, और आने वाला सिंबल जब होगा 1। बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सिंगल स्टेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई अगर इनपुट सिंबल 0 भी आ रहा है और इनपुट सिंबल 1 भी आ रहा है तो भी हमारा स्टेट Q0 रहेगा। और Q0 में क्या कर रहे हैं, जब 0 आएगा तो 0 को हम 1 लिखेंगे, मीन्स 1 आउटपुट विल बी जनरेटेड। जब 1 आएगा तो 1 की वजह से हम आउटपुट 0 जनरेट करेंगे। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो यहाँ पे लॉजिक है, रीड द बाइनरी नंबर बिट बाय बिट फ्रॉम MSB साइट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड से यानी लेफ्ट टू राइट हम हमारे बाइनरी नंबर को रीड करेंगे, और रीड करते वक्त अगर 1 आ रहा है तो 1 को 0 से रिप्लेस करते जाएंगे, और 0 आएगा तो 0 को 1 से रिप्लेस करते जाएंगे। दिस विल बी द लॉजिक। और इस पर्टिकुलर लॉजिक के हिसाब से अभी हमारे स्टेट्स जो रहेंगे, यहाँ पे हमारा स्टेट रहेगा Q0। दो स्टेट लेते हुए भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट हम सिंगल स्टेट से ही सॉल्व करेंगे। तो हियर माय स्टेट इज Q0, और Q0 स्टेट तब जब मेरा इनपुट जो होगा वो 0 रहेगा तब, और Q0 स्टेट तब जब मेरा इनपुट जो होगा वो 1 होगा तब। तो आइदर 0 विल बी देयर और आइदर 1 विल बी देयर, इन बोथ द केसेस मेरा स्टेट जो रहेगा वो Q0 ही रहेगा। एंड आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ अ मिले मशीन। तो डेफिनेशन ऑफ मिले मशीन के टपल्स हमने देखे थे, Q, सिग्मा, डेल्टा, डेल, लैम्बडा एंड Q0। तो इस पर्टिकुलर टपल्स के हिसाब से अभी हम मिले मशीन को डिफाइन करेंगे। तो व्हाट विल बी द Q, तो Q का मतलब होगा हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर। तो हमारे पास सिंगल स्टेट है, दैट इज Q0।
देयरफॉर क्यू विल कंटेन क्यू जीरो, देन सिग्मा, मैं बाइनरी स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, देयरफॉर इनपुट अल्फाबेट्स विल बी जीरो एंड वन। देन डेल्टा, डेल्टा का मतलब है आउटपुट अल्फाबेट। तो आउटपुट अल्फाबेट का मतलब जो कुछ भी फाइनाइट ऑटोमेटा आउटपुट जनरेट करने वाला है। तो जीरो वन को, जीरो को रीड करके हम वन आउटपुट करने वाले, और वन को रीड करके जीरो आउटपुट जनरेट करने वाले, इसलिए हमारा आउटपुट अल्फाबेट भी फिर से जीरो एंड वन ही रहेगा। और डेल्टा जो रहेगा, डेल जो रहेगा, दैट इज विल बी द ट्रांजिशन फंक्शन जो हम डिजाइन करने वाले हैं। और लैम्बडा जो है, अब लैम्बडा हमें डिजाइन करना है कि अगर रिजल्टेंट स्टेट क्यू जीरो है और रिजल्टेंट स्टेट क्यू जीरो इनपुट सिंबल जीरो की वजह से अगर आ रहा है, तो एट दैट टाइम हमें आउटपुट जनरेट करना है वन, क्योंकि जीरो को रिप्लेस कैसे करना है, वन से रिप्लेस करना है। और क्यू जीरो पे अगर हम वन की वजह से अगर आ रहे हैं, तो जब भी वन आएगा वन को हमें रिप्लेस करना है जीरो से, इसलिए क्यू जीरो और वन वी हैव टू राइट जीरो। तो इन दिस वे हमारा लैम्बडा रहेगा। और लैम्बडा के बाद फिर हमारा इनिशियल स्टेट, तो इनिशियल स्टेट विल बी क्यू जीरो। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मिले मशीन। तो यहाँ तक आपको समझा है, काइंडली एक्नॉलेज। ओके, नाउ वी हैव टू गो फॉर द ट्रांजिशन टेबल। और ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास एक ही स्टेट है, दैट इज व्हाट माय क्यू जीरो स्टेट, इसलिए यहाँ पे क्यू जीरो स्टेट रहेगा। और क्यू जीरो स्टेट हमेशा दो तरह के आउटपुट जनरेट करने वाला है, एक तो वन या फिर जीरो। तो क्यू जीरो पे अगर जीरो आएगा तो रिजल्टेंट स्टेट हमारा क्यू जीरो ही रहेगा, बट जब जब जीरो आएगा आउटपुट हमें वन जनरेट करना है, एंड देयर फोर लैम्बडा विल बी वन। और क्यू जीरो पे जब इनपुट सिंबल वन होगा, तो वन की वजह से रिजल्टेंट स्टेट हमारा क्यू जीरो ही रहने वाला है, बट अभी हमारा आउटपुट जो रहेगा दैट शुड बी जीरो, क्योंकि वन आएगा तो आउटपुट जीरो जनरेट करना है, और जब जीरो आएगा तो आउटपुट हमें वन जनरेट करना है। तो इस हिसाब से हमारा ये ट्रांजिशन टेबल है, और अभी इसी ट्रांजिशन टेबल से हम ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे करंट प्रॉब्लम में हमारा इनिशियल स्टेट जो है वो क्यू जीरो है, तो हमने यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्यू जीरो दिखाया। और क्यू जीरो पे जब जीरो आएगा तब रिजल्टेंट स्टेट हमारा क्यू जीरो ही रहेगा, बट आउटपुट क्या जनरेट होने वाला है वन, इसलिए हम इसको लिखेंगे जीरो। मीन्स इस रिप्रेजेंटेशन में हमने फर्स्ट जो चीज लिखी है दैट इज व्हाट विल बी द इनपुट सिंबल, और स्लैश के बाद जो लिखा है दैट विल बी द आउटपुट जनरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर ट्रांजिशन। तो इस ट्रांजिशन की वजह से आउटपुट जो जनरेट होगा वो रहेगा वन। देन वी हैव नेक्स्ट हियर, नेक्स्ट इनपुट सिंबल इज वन। तो वन की वजह से फिर से हम क्यू जीरो पे जाएंगे, लेकिन ये वन की वजह से भी हम आउटपुट जो जनरेट करेंगे वो रहेगा जीरो। तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन, एंड नाउ वी कैन गो फॉर द सिमुलेशन। तो यहाँ पे, हाँ, हेलो, आवाज बहुत अटक के आ रही है।